اور بھائی شروعات کرتے ہیں بی جے پی کے سابق لیڈروں نپور شرما اور نوین کمار جندل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متنازع بیانات پر دنیا بھر میں غم و غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب اس معاملے پر امریکہ کا مذمتی بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ پیغمبر اسلام کے متعلق اہانت آمیز بیانات کی مذمت کرتا ہے۔ ادھر کویت کی انگریزی نیوز ویب سائٹ عرب ٹائمز نے رپورٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کویت کے قانون سازوں نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر ہندوستان کے خلاف ہر قسم کا دباؤ ڈالے۔ دیکھیے رپورٹ۔ امریکہ نے کی اہانت آمیز بیانات کی مذمت، عرب ممالک میں نہیں تھم رہا ہے غصہ۔ کویت کے ارکان پارلیمنٹ نے جاری کیا بیان، ہندوستان پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ، عرب ممالک میں انڈیا کے خلاف کارروائی کی مانگ۔ بی جے پی کے سابق لیڈروں نپور شرما اور نوین جندل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متنازع بیانات پر دنیا بھر میں غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 26 مئی کو ٹیلی ویژن پر ایک بحث کے دوران دیے گئے اہانت آمیز بیانات کے خلاف پوری مسلم دنیا میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص طور پر عرب ممالک میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور اب اس معاملے پر امریکہ کا مذمتی بیان بھی سامنے آیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پیغمبر اسلام کے متعلق اہانت آمیز بیانات کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بی جے پی کے 2 عہدیداروں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کی مذمت کرتے ہیں۔ البتہ اس بات پر ہمیں خوشی ہوئی کہ بی جے پی نے ان بیانات کی عوامی سطح پر مذمت کی ہے۔ نیڈ پرائس نے مزید کہا کہ امریکہ مذہبی یا عقیدے کی آزادی کے حوالے سے تحفظات پر حکومت ہند کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں ہے۔ کچھ روز قبل ہی بین الاقوامی مذہبی آزادی کے حوالے سے سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے مذہبی مقامات پر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی بیچ کویت کی انگریزی نیوز ویب سائٹ عرب ٹائمز نے رپورٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کویت کے قانون سازوں نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر ہندوستان کے خلاف ہر قسم کا دباؤ ڈالے۔ کویت کی 50 رکنی والی قومی اسمبلی میں سے 30 ارکان پارلیمنٹ نے ہندوستان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے پولیس کی کارروائی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عرب ٹائمز نے لکھا کہ ممبران پارلیمنٹ نے کویت اور دیگر اسلامی ممالک سے حکومت ہند پر سیاسی، سفارتی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ کویت ٹائمز نے لکھا کہ سوشل میڈیا صارفین تمام عرب ممالک اور خاص کر خلیج ممالک سے ہندوتوا حامیوں کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پرامن احتجاج کے بدلے میں خلیجی ممالک میں رہنے والے ہندوؤں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے پیغمبر اسلام کی توہین کے بدلے کے طور پر کیا جانا چاہیے۔ بیان میں ہندوستانی مسلمانوں اور ان کی املاک کے خلاف حکومت ہند کی کارروائی کی بھی مذمت کی گئی اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان اہانت آمیز بیانات کے بعد نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان اور عرب ملکوں نے بھی، جن کے نئی دہلی کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، سفارتی سطح پر احتجاج کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاج کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر قابو پانے کی کوشش میں بی جے پی نے ان 2 ترجمانوں میں سے ایک کو پارٹی سے برخاست جبکہ دوسرے کی رکنیت کو معطل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین سے قطعی لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ تاہم اس لا تعلقی کا اظہار اس وقت کیا گیا جب عرب ممالک نے کاروباری اعتبار سے ہندوستان کے ارد گرد دائرہ تنگ کر دیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اور ادھر فلسطینیوں پر اسرائیلی تشدد میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں روس اور یوکرین جنگ پر مرکوز ہے، جبکہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائی کر رہا ہے۔ تازہ معاملے میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 3 فلسطینی جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ متوفی فلسطینیوں کی شناخت 23 سالہ یوسف صلاح
24 साला बरा लहलू और लेथ अबू सरोस के नाम से हुई है। फिलिस्तीनी खबरसां इदारे वफा के हवाले से बताया गया कि तीनों फिलिस्तीनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे कि इसराइली फौज की 30 गाड़ियों ने उनका मुहासरा कर लिया और कार में बैठे फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जिसके बाद इलाके में शदीद झड़पें हुई और इसराइली अहलकारों की फायरिंग से 10 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। महलूक फिलिस्तीनियों के जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इसराइली आर्मी ने एक बयान में कहा कि उसके अहलकार जिनेन में 2 मकामात पर हथियारों की तलाश में ऑपरेशन कर रहे थे। इसराइली फौज ने दावा किया कि कार से सिपाहियों पर फायर किए गए, जिस पर उन्होंने फायरिंग करने वाले अफराद को कत्ल कर दिया। उन्हें जाय वकूफ़ से M16 राइफल समेत दीगर हथियार भी मिले। ख्याल है कि इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के जुनैन कैंप में अपनी कार्रवाइयां तेज की हैं, जो फिलिस्तीनी मुसल्लह जद्दोजहद का गढ़ माना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत, इस्लाहात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तिजारती मुआहदों के एक बेमिसाल पैकेज पर इत्तेफाक किया है। माहिर सेहत WTO इस्लाहात की मुस्तक़बिल डिजिटल टेक्नोलॉजी, खुराक और माहौलियात पर रुकन ममालिक मुत्तफ़िक़ हुए। ख्याल है कि अहम मसाइल पर ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुज़ाकरात को मज़ीद 2 दिन तक बढ़ा दिया था। WTO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि मुआहदों का जो पैकेज मंजूर किया गया है, इससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगियों में फ़र्क आएगा। उन्होंने कहा कि नतायज ज़ाहिर करते हैं कि WTO दरहकीकत हमारे वक्त के हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के काबिल है। इस इजलास में बरामदात पर पाबंदियों को ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक किया गया, जिसका बोझ अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम पर पड़ रहा है, जो खुराक की बढ़ती हुई कीमतों और यूक्रेन में रूस की जंग के नतीजे में गेहूं और दीगर ग़िज़ाई अशिया की तरसील के असरात को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने एतराफ़ किया कि अमेरिकी अवाम 2 साल के हंगामा खैज़ कोरोना वायरस के वबाई मर्ज, मईशत में उतार चढ़ाव और अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बाद वाकई तनज़्ज़ुल की कैफियत महसूस कर रहे हैं और यह सूरत हाल उनके घरेलू बजट पर असरअंदाज हो रही है। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस को इंटरव्यू देते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि जहां तक मजमूई तौर पर अमरीकी ज़हनियत का ताल्लुक़ है, लोग वाकई मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। बाइडेन ने ये इंटरव्यू अमेरिका के मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व की जानिब से शरह सूद की इजाफे के ऐलान के 1 रोज़ बाद दिया है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका की मरकजी बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों में सबसे ज़्यादा शरह सूद के इजाफे का ऐलान किया था। ताहम मरकजी बैंक के इक़दाम के बाद कसाद बाजारी के खदशात बढ़ने के बाद जुमेरात को अमरीकी स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार रही। और बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए पेशकश करते हुए कहा कि नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात तोड़ना मुल्क के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद पहले ही बैनुल-अक़वामी तौर पर अलग थलग है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ मसाइल हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग तनाज़ात की एक तवील तारीख़ है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में दरार आ गई थी। इंडिया के इस फैसले पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्दमल सामने आया था, जिसके नतीजे में सफारती ताल्लुकात में कमी आई और हिंदुस्तानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया गया था। यूरोपीय कमीशन ने सिफारिश की है कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा दिया जाए, जो जंग ज़दा मुल्क की रुकनीत की जानिब तवील रास्ते पर पहला कदम है। यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव हाउस की जानिब से जुमे को दी जाने वाली सिफारिश पर अब 27 ममालिक के ब्लॉक के सदर ब्रसेल्स में अगले हफ्ते होने वाली समिट के दौरान बहस करेंगे। इल्हाक के मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तमाम रुकन ममालिक की मुत्तफ़क़ा मंजूरी दरकार होती है। वहीं रूस ने इस मामले में यूरोपीय कमीशन पर जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम लगाया है। देखिए रिपोर्ट।
यूरोपीय कमीशन ने जुमा को सिफारिश की कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा दिया जाए, जो जंग ज़दा मुल्क के लिए यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की तरफ तवील रास्ते पर पहला कदम है। यूक्रेन की बोली को उस वक्त तक़वियत मिली जब फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया के रहनुमाओं ने जुमेरात के रोज यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेन की उम्मीदवारी की हिमायत की। The Commission recommends to the Council, first, that Ukraine is given European perspective, and second, that Ukraine is given candidate status. This is, of course, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. And we all know that Ukrainians are ready to die for the European perspective. We want them to live with us the European dream. Turning to Moldova, our assessment goes broadly into the same direction as for Ukraine. We therefore also recommend that Council grants Moldova the European perspective and candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. वाज़ेह है कि नए अराकीन को शामिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन के तमाम मौजूदा रुकन ममालिक से मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दरकार होती है। ताहम यूक्रेन के ताल्लुक़ से यूरोपीय कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, क्योंकि कई ममालिक यूरोपीय यूनियन के रुकन बनने के इंतजार में हैं, मगर शराइत और मयार पूरा करने में नाकाम हैं। ताहम यूक्रेन के लिए यूरोपीय कमीशन का नरम रवैया कई सवाल खड़े करता है। याद रहे कि यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन को रुकनीत देने के लिए बदनवानी खत्म करने और माशी और सियासी इस्लाहात पर जोर दिया था, लेकिन इस वक्त यूक्रेन को जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की रुकनीत देने की सिफारिश की जा रही है, कमीशन का ये फैसला उसकी साख को कमजोर करेगा। मिसाल के तौर पर तुर्की ने 1987 में रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी, 1999 में उम्मीदवार का दर्जा हासिल किया और हकीकी दाखिले के लिए बातचीत शुरू करने के लिए 2005 तक इंतजार करना पड़ा। वहीं मगरबी बल्कान के 6 ममालिक यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल करने के लिए कई दहाइयों से मुंतज़िर हैं। ऐसे में यूक्रेन को रुकनीत देने की सिफारिश करना यूरोपीय कमीशन के तरीक़े इंतखाब पे सवाल उठाता है। इसलिए रूस ने यूरोपीय यूनियन पर यूक्रेन की रुकनीत के हवाले से जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जुमे को अलग सुबह एक इमारत गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए। इमारत मुरहदम होने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। राहत और बचाव का काम जारी है। मिस्र में इमारतों के गिरने के वाक़यात आम हैं, क्योंकि तामीरात में नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र की हुकूमत ने दहाइयों की लापरवाही के बाद हालिया बरसों में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिश की है। और मलेशिया के सैकड़ों वकला ने जुमे के रोज एहतजाज किया। यह एहतजाज मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को मुजरिम करार देने वाले सीनियर जज के खिलाफ एंटी करप्शन एजेंसी की जांच कार्रवाइयों के खिलाफ किया गया। एहतजाजी वकला ने सीनियर जज के खिलाफ जांच की मजम्मत की और कहा कि यह अदलिया की आज़ादी के लिए खतरा है। मलेशिया के इंसदाद बदउनवानी कमीशन ने अप्रैल में जज मोहम्मद नजलान मोहम्मद गजाली के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन से ज़्यादा गैर महसूब रकम पाई गई। वाज़ेह कि नजलान हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने जुलाई 2020 में साबिक़ वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 12 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। नजलान और अदलिया ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि इल्ज़ामात का मकसद उनकी छवि को दागदार करना और अदलिया के निज़ाम में मुदाखलत करना है। We want to record our condemnation against the acts of MECC, of course. We also want the government to uphold the independence of the judiciary. We want the government to be able to also preserve and maintain the judicial independence so that people are confident with our judicial system. And lastly, I think we should be asking for legislative reforms. Reforms on how we can set parameters as to these kinds of allegations that's going to be made against sitting judges. I think we need to be clear.
मोदी सरकार की जानिब से फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कई रियासतों में नौजवान इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। कई शहरों में तशद्दुद और ट्रेनों बसों को आग लगाने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। पेश एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज में भर्ती के लिए लाई गई ताजा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में तीसरे दिन भी मुजाहरे जारी रहे। अग्निपथ की आग 10 रियासतों बशमूल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मगरबी बंगाल और तेलंगाना तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही ये तहरीक अब पुरतशद्दुद हो चुकी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भड़कने वाले तशद्दुद में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में नौजवानों का शदीद मुजाहरा देखने को मिला। बिहार के बेतिया में मुजाहिरीन ने नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर रेणु देवी और रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल के घर पर हमला कर दिया। मुजाहिरीन अग्निपथ स्कीम में तब्दीलियों के बाद भी बहाली के पुराने तरीके को नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार के बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय और मुंगेर और उत्तर प्रदेश के बलिया, बनारस, चंदौली, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस पर नौजवान मुश्ताइल नजर आए। कई मकामात पर मुजाहिरीन ने ट्रेनों को जला दिया। रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई। समस्तीपुर में शरपसंदों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों को आग लगा दी। बस में आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद नाराज तलबा ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। अग्निपथ तशद्दुद की वजह से 200 से ज्यादा ट्रेनें मंसूख। बिहार में 4 ट्रेनें नजरे आतिश, मुतादिद स्टेशनों पर तोड़फोड़। दरभंगा में मुजाहिरीन के दरमियान फंसे स्कूली बच्चे पुलिस ने बचाया। अब तक 24 FIR, 125 को हिरासत में लिया गया। समस्तीपुर में बीजेपी लीडर वीरेंद्र यादव के घर पर पथराव। बीजेपी सदर के घर पर भी हुआ हमला। अलीगढ़ में बीजेपी लीडर की गाड़ी को आग लगा दी गई। बलिया में 100 शरपसंद गिरफ्तार। अग्निपथ आग की वजह से मगरबी बंगाल में 9 ट्रेनें मंसूख हो गईं। हल्द्वानी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतिजाज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उधर इंदौर, मध्य प्रदेश में नौजवान मुश्तइल हुए तो सिकंदराबाद में ट्रेन सर्विस रोक दी गई। तेलंगाना में अग्निपथ में आग लगने से एक शख्स हलाक। तो दिल्ली में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे का कहना है कि नौजवान अग्निपथ स्कीम की खुसूसियात को नहीं जानते, इसलिए मुश्तइल हो रहे हैं। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। हिंदुस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना है कि भर्ती के अमल में इजाफा करके अब 23 साल उम्र कर दी गई है। इससे नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तानी फजाइया में भर्ती का अमल 24 जून से शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। अग्निपथ पर हंगामा आराई के बहाने राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए ट्वीट में लिखा, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, ज़राई कवानीन को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को माहिरीन माशियात ने नकारा, GST,
ताजिरों ने नकार दी। एहतिजाज और मुजाहरों के दरमियान हिंदुस्तानी फजाइया में भर्ती का अमल 24 जून से शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से नौजवान अग्निपथ भर्ती के लिए अग्नि परीक्षा के लिए पहुंचेंगे और एहतिजाज करने वाले नौजवान मुजाहरा करते रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने बहरिया के सरबरा आर हरि कुमार के साथ मोदी हुकूमत की अहम अग्निपथ आर्मी भर्ती स्कीम के बारे में खुसूसी बातचीत की और अग्निपथ स्कीम के बारे में तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए बहुत से सवालात पूछे। जॉब सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि फौज के जवानों से अलग अग्निवीरों के पास 4 साल बाद नौकरी छोड़ने का मौका होगा और इन 4 सालों में वो सभी से 100% बेहतर बन जाएंगे। बहरिया के सरबरा आर हरि कुमार से बातचीत की CNN न्यूज़ 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने। है जॉब सिक्योरिटी का कि अगर वो 4 साल अग्निवीर बनते हैं तो उसके आगे क्या? देखिए, अनलाइक जो अभी जो एनरोलमेंट हो रहा है अभी तक, जहां लोग ज्वाइन कर रहे हैं और 15 साल या 20 साल सर्व करके फिर सर्विस छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, ये लोग जो है 17.5 या 18 में आएंगे और 22 तक सेवा कंप्लीट करके बाहर जाएंगे। मतलब इसमें इनको ऑप्शन है, मतलब जिसको कंटिन्यू करना है वो ऑप्ट करेंगे और जिसको ये सर्विस लाइफ ज्यादा पसंद नहीं है या कोई और काम पे करना चाहता है वो बाहर भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन अभी नहीं है। अभी जो हमारे जो एनरोल सेलर्स हैं और सोल्जर्स हैं, उनको ये ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एक बार आप एनरोल हो गया, 15 साल या 20 साल जितना ड्यूरेशन के लिए आप एनरोल कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करके ही आप बाहर जा सकते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज है। और दूसरा जो है, ये हमारा नंबर ऑफ अग्निवीर जो एम्प्लॉय हो जाएंगे या एनरोल हो जाएंगे, उनका नंबर्स काफी पहले से काफी बड़ा होगा। जैसे नेवी में अभी नॉर्मली हम लोग 5,000-6,000 लोग रिक्रूट करते हैं नॉर्मली इन ए ईयर, बट 4-5 साल के बाद जैसे ये स्कीम बढ़ता जाएगा, हमको रिटेन करना है 25%। इसलिए हम लोग रिटेन एनरोल करेंगे ऑलमोस्ट 4 times दैट नंबर, मतलब 20,000 या 18,000 के आसपास के नंबर्स को हम लोग 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे, तो एक हर साल। तो ये तो आपका कहना है नौकरियां बढ़ेंगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज, शॉर्टर ड्यूरेशन का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफी 3-4 times वो बढ़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी यूथ टू कम एंड सर्व इन द आर्म फोर्सेस, जो अभी नहीं हो सकता है, वो लागू होगा। आलमी मंजर में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।